بادشاہ اور کنگال۔ بہت عرصہ پہلے جب بادشاہ ہنری آٹھ لندن پر حکومت کرتے تھے، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ دو لڑکوں کی پیدائش ہوئی ایک ہی دن، ایک ہی وقت۔ ایک پیدا ہوا ایک محل میں اور اس طرح وہ شہزادہ بن گیا۔ دوسرے کی پیدائش ایک مفلس گھرانے میں ہوئی اور اس طرح سے وہ مفلس انسان بن گیا۔ اس مفلس انسان کا گھر محل سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ ان دنوں بہت ہی افسوسناک حالات تھے۔ ایک طرف جہاں شہزادے ایڈورڈ کو اعلیٰ کھانا اور لباس حاصل تھا، پر اس مفلس کو جس کا نام تھا ٹام، اسے ایک وقت کھانے کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی اور اسے چتھڑوں کے علاوہ کچھ اور نصیب نہیں تھا۔ جیسے جیسے وہ دونوں بڑے ہوئے، ایک اور اتفاق سامنے آنے والا تھا۔ یہ دو لڑکے انتہائی ایک جیسے دکھتے تھے۔ ٹام، تم نکمے لڑکے، تم آج میرے لیے کچھ نہیں لائے۔ ابا، میں بھیک نہیں مانگنا چاہتا۔ کوئی بھیک مانگنا چاہتا ہے کیا احمق کہیں کے؟ اگر تم بھیک نہیں مانگو گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ اگر تمہارا یہی رویہ ہے تو تمہیں ایک محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تم ایک کنگال کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ پر اس کا فیصلہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے؟ او بکواس بند کرو، تم ناشکر گزار لڑکے، دفع ہو جاؤ اور میرے لیے پیسے لے کر آؤ۔ ٹام کی زندگی میں صرف ایک ہی اچھی بات تھی اور وہ تھے پروفیسر اینڈروز، جو قریب ہی ایک اسکول میں پڑھاتے تھے۔ وہ ہر ہفتے اپنے ساتھ مختلف کتابیں لاتے اور ٹام کی حوصلہ افزائی کرتے کہ وہ پڑھے۔ کتابیں انسان کا سب سے اچھا دوست ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی حالت میں تمہاری رہنمائی کرتی ہیں۔ مجھے علم ہے کہ زندگی تمہارے لیے کتنی دشوار ہے۔ نہیں، آپ کو یہ علم نہیں، کسی کو یہ علم نہیں۔ مجھے بتائیں پروفیسر، میری پیدائش محل میں کیوں نہیں ہوئی؟ میں زندگی بھر کنگال نہیں بنا رہنا چاہتا۔ یہ ناانصافی ہے۔ کس نے کہا کہ تمہیں کنگال بنے رہنا ہوگا صرف اس لیے کہ تم ایک کنگال گھر میں پیدا ہوئے؟ پر کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک مفلس کی اولاد مفلس ہوتی ہے اور بادشاہ کی اولاد شہزادہ یا پھر شہزادی؟ پر جیسے جیسے ہم عمر میں بڑھتے ہیں، ہم کچھ اور بننے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دراصل ہم جو بننا چاہیں ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس بات کا مجھے جواب دو، اگر میں تمہارے سامنے دو چیزیں رکھوں کہ یا تو تم مفلس بنو یا لالچی اور بے ایمان شخص بنو، تو تم کیا بننا پسند کرو گے؟ اگر دوسرا انتخاب یہ ہے کہ مجھے ایک بے ایمان شخص بننا پڑے گا تو میرے لیے بہتر ہوگا میں مفلس ہی بنا رہوں اور ایماندار رہوں۔ بالکل، اب دیکھا تم نے، تم ہمیشہ انتخاب کر سکتے ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہاری پیدائش ایک محل میں ہوئی ہے یا جھوپڑی میں۔ ایک اور ایماندار بننے میں ہمت لگتی ہے ٹام، اور میں جانتا ہوں تم میں وہ ہمت ہے۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ شکریہ۔ ایک دن ٹام کھانے کی تلاش میں دور نکل آیا۔ کچھ میل چلنے کے بعد وہ محل پہنچ گیا۔ وہ اپنے سامنے ایک لمبی اور اونچی عمارت دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا۔ وہ اس کے گرد گیا اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے جھاڑیوں میں سے اس نے چھپ کر دیکھا۔ اس نے شہزادے ایڈورڈ کو اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ یہ ضرور شہزادہ ہی ہوگا۔ کاش کہ میں بھی ایسی شاہی زندگی جی سکتا۔ ادھر آؤ، میلے کچیلے، اس احاطے میں آنے کی تمہاری ضرورت کیسی ہوئی؟ چلو اسے محل سے باہر پھینکتے ہیں۔ جیسے ہی پہرے داروں نے ٹام کو باہر پھینکنے کے لیے اٹھایا، شہزادہ ایڈورڈ دوڑتا ہوا باہر آیا۔ یہ سب شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لڑکا محل میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے ٹام کینٹے۔ میں معافی کا طلبگار ہوں حضور۔ میں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، میں تو بس آپ کی کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ حالانکہ وہ بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا، ٹام نے بہت عزت دار طریقے سے بات کی۔ شہزادہ اس لڑکے کے بابت اور جاننے کی خواہش سے بے تاب ہو اٹھا۔ وہ ٹام کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے کھانا اور مٹھائیاں پیش کی۔ ٹام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حقیقت میں ایک محل میں کھڑا ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ کاش کہ میں بھی ایک شہزادہ ہوتا۔ کیا تمہیں یہاں کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے ٹام؟ ہماری شکل اور صورت ایک جیسی ہے۔ وہی گول ناک، گھنگرالے بال، بڑی آنکھیں۔ میں نے اس پر تو توجہ نہیں دی تھی، لیکن ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے جو ہم مختلف جگہوں سے آتے ہیں۔ اس سلطنت میں اسی بات کی اہمیت ہے کہ آپ اتنے قیمتی لباس پہنتے ہیں اور میں چتھڑے پہنتا ہوں۔ آپ کے پہرے داروں نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا آپ نے دیکھا؟ انہیں پرواہ نہیں کہ آپ اور میں ایک جیسے لگتے ہیں۔
किसी को कोई परवाह नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। रुको, क्यों ना हम अपने कपड़े बदल लें और हर एक को आजमाएं। इसमें लुत्फ आएगा। मैं यकीन से नहीं कह सकता। इतना मत सोचो टॉम, अब हम दोस्त हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। टॉम और एडवर्ड खुद को आईने में देखकर हैरत में पड़ गए। वाह, हम एक से लगते हैं, पर ये सब एक ख्वाब है। अब हमें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। जल्दी क्या है, मुझे अपने पहरेदारों का इम्तिहान लेने दो। मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा एक कंगाल का भेष बनाकर, और तुम यहाँ रुकना और शहजादा एडवर्ड होने का दिखावा करना। लेकिन क्या होगा अगर? फिक्र मत करो टॉम, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब चलता हूँ। बाहर जाते वक्त शहजादे ने अपनी अलमारी से कुछ उठाया और उसे अपने गंदे कपड़ों में छुपा लिया, और वो फिर महल के बाहरी फाटक तक पैदल चलकर गया। पहरेदारों ने उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी। टॉम सही कह रहा था, वो बस इसी की परवाह करते हैं कि मैं क्या पहनता हूँ। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एडवर्ड फाटक के पास गया और फिर मुड़ा अंदर जाने के लिए, पर पहरेदारों ने उसे रोक लिया। रुको, बहुत हो गया। अब हम तुम्हें अपने शहजादे के आसपास और नहीं रहने देंगे। दफा हो जाओ। इत्मीनान रखो, मैं शहजादा एडवर्ड हूँ। और मैं बादशाह हूँ। क्या? नहीं, तुम नहीं हो। चाहे उसने कितनी भी गुजारिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। पहरेदारों को यकीन नहीं आया। उन्होंने शहजादे को बाहर फेंक दिया। अरे, ये सफर आसान नहीं होने वाला। अब मैं कहाँ जाऊँ? शहजादा महल से दूर चलता गया और बदकिस्मती से टॉम के बाप ने उसे ढूंढ लिया। निकम्मे लड़के, कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ जाकर खाना ले आओ। कभी किसी ने एडवर्ड से इस तरह से गुफ्तगू नहीं की थी। खौफजदा और कश्मकश में वो वहाँ से चला गया कुछ खाना लाने की तलाश में। जब वो सड़क पर आगे बढ़ा, शहजादा एडवर्ड वहाँ का नजारा देखकर हैरत में पड़ गया। मेरी सल्तनत में लोग इतनी गुर्बत में हैं, ये नाकाबिले यकीन है। हम हर रोज महल में इतना खाना जाया करते हैं, और यहाँ इनके पास इतना भी खाना नहीं कि 2 जनों के खानदान को खिला सके। इस दौरान टॉम ने अपने आसपास हर शख्स को यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो शहजादा एडवर्ड नहीं है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसके आसपास हर कोई किसी उलझन में मुब्तला दिखता था। क्या वो ठीक है? लगता है उसे कुछ हो गया है। मुझे इल्म नहीं, मैंने उससे इंग्लैंड की वो अजीम मोहर मांगी थी, और उसने ये कहकर मुझे जवाब दिया कि वो इसकी बाबत कुछ नहीं जानता। वो शहजादा है, ये उसका फर्ज है कि मोहर की हिफाजत करे। उसे कैसे इसका इल्म नहीं? मुझे माफ करना, पर क्या ये मुमकिन हो सकता है कि वो भूल गया हो, उसी तरह जिस तरह लगता है कि भूल गया है कि वो शहजादा एडवर्ड है, कोई कंगाल टॉम वॉम नहीं। ओह खुदाया, ये तो बहुत बुरा होगा। बादशाह की सेहत बिगड़ती जा रही है और शहजादा अपनी याददाश्त खो रहा है। ओह खुदा, इस सल्तनत को बचाओ। टॉम चाहता था कि एडवर्ड महल में जल्दी वापस आए, पर साथ ही साथ वो ये भी जान गया कि उसे अपने सल्तनत को बखूबी चलाना होगा जब तक कि असली शहजादा वापस नहीं आता। आखिर शहजादा एडवर्ड उसका दोस्त था और वो उसे नाउम्मीद नहीं करेगा। टॉम अक्लमंद और दानिशमंद था। उसने पूरी तरह अपने फर्ज संभाल लिए और जल्दी ही सब सीख लिया। महल में हर कोई उस पर आहिस्ता आहिस्ता भरोसा करने लगा और वो अपने शहजादे को चाहने लगे। वो काबिल और तालीम शुदा लड़का था। वो इल्म जो उसने उन किताबों से हासिल किया था जो उसे प्रोफेसर एंड्रू ने दी थी, उसने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। उसकी दानिशमंदी की तारीफ की गई। उसका रवैया सबकी जानिब हलीमी और दरियादिली का था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक एक दिन एक अफसोसनाक हादसा न हो गया। बादशाह हेनरी 8 का इंतकाल हो गया। महल में बादशाह के लिए मातम छा गया। मुझे बहुत अफसोस है आपके इस नुकसान के लिए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि बादशाह बनाने के लिए आपकी ताजपोशी की जाए। क्या? पर जल्दी क्या है? इस सल्तनत के लोगों को तुम्हारी जरूरत है शहजादे, और तुमने अब काफी सीख लिया है। ये करना लाजमी है। अब मैं ताजपोशी का इंतजाम करता हूँ।
टॉम को यहाँ महल में रहना पसंद था, पर वो अच्छी तरह से वाकिफ था कि ये वो जिंदगी नहीं है जो उसे जीनी है। वो बादशाह का ताज नहीं पहनना चाहता था। उसने अपने आदमियों को बाहर सड़क पर भेजा शहजादे एडवर्ड की तलाश में, पर क्योंकि पहरेदारों को पता नहीं था कि किस मुफलिस लड़के की तलाश की जाए, वो हमेशा वापस आते बिना कोई खबर लाए। टॉम शहजादे के लिए फिक्रमंद हो रहा था, जबकि हर रात टॉम अपने पूरे दिल से इसकी तमन्ना करता कि शहजादा वापस आ जाए। एडवर्ड अब एक और मुसीबत में फंस गया। एक मर्तबा सड़क पर चलते हुए एडवर्ड को दो बदमाशों ने पकड़ लिया, जिन्होंने उसे चोरी करने पर मजबूर किया। हालांकि एडवर्ड ने असल में चोरी नहीं की थी, पर उसे जेल में डाल दिया गया। उस दिन उसे अदालत में ले जाया जाना था। एडवर्ड तैयार था इससे भी बदतर हालात के लिए, पर इत्तफाक से योर ऑनर, एक गलती हुई है। मेरे पहरेदारों ने इस लड़के को पकड़ा ये सोचकर कि ये एक चोर है, पर उसने कुछ भी नहीं चुराया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसे रिहा कर दें योर ऑनर। एडवर्ड को रिहा कर दिया गया। उसने उस रहमदिल इंसान का शुक्रिया अदा किया और उससे एक छोटी सी गुजारिश की। मेरे पास एक बहुत ही अहम पैगाम है जो महल ले जाना चाहिए। कल शहजादे एडवर्ड की ताजपोशी है, इसलिए क्या आप मुझे फौरन महल ले जा सकते हैं? उस शख्स ने एडवर्ड पर यकीन नहीं किया, पर क्योंकि वो खुद ताजपोशी के जश्न में शिरकत करना चाहता था, वो राजी हो गया एडवर्ड को साथ ले जाने के लिए। अगले दिन महल के अंदर हर कोई इकट्ठा हुआ था अपने नए बादशाह की हमदो सना करने के लिए। हम सब के लिए ये एक तारीखी दिन है। आज हम अपने नए बादशाह की ताजपोशी करेंगे, बादशाह एडवर्ड की। हर कोई जोश और खरोश से भरा था। जैसे ही ताज टॉम के सिर पर रखा जाने वाला था, नहीं, रुको, मैं हूँ असली शहजादा एडवर्ड। क्या? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? अपने कपड़ों की तरफ देखो। पहरेदारों, इसे गिरफ्तार कर लो। नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो। पहरेदारों, पीछे हट जाओ। वो सच कह रहे हैं। लॉर्ड सेंट जॉन, वो शहजादा एडवर्ड हैं और मैं हूँ टॉम कैंटे। मैंने आप सबको बताने की कोशिश की, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? अगर अभी भी आप हमारा यकीन नहीं करते तो फिर ये लो। क्या कोई इंग्लैंड की अजीम मोहर के बारे में फिक्रमंद नहीं है? मैं ये अपने साथ ले गया था जब मैं महल से बाहर गया था। शहजादा एडवर्ड और टॉम ने पूरा वाकया सुनाया। हर कोई इसे सुनकर हैरत में पड़ गया कि उनका असली शहजादा बाहर सड़कों पर भड़क रहा था। मैं मुआफी का तलबगार हूँ शहजादे। मैंने आपको ढूंढने की कोशिश की। मेहरबानी करके अपनी जगह लें, एक बादशाह के मानिंद। टॉम, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने वफादारी से मेरे फर्ज निभाए जब मैं बाहर था। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मुझे गलत साबित करने और मेरा तख्त छीनने के लिए तुम झूठ बोल सकते थे। बादशाह सलामत, मैं एक मुफलिस का बेटा हो सकता हूँ, पर एक बेईमान इंसान होने का इंतखाब नहीं कर सकता। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने तुम्हें जाना टॉम। क्या तुम मेरे जाती सलाहकार का ओहदा कबूल करोगे? इस सल्तनत को तुम्हारी जहनियत की जरूरत है। मैं शुक्रगुजार होऊंगा हुजूर। जैसे ही असली शहजादे की ताजपोशी की गई, इंग्लैंड के बादशाह बनने पर उसने फौरन ही कुछ अहम बदलाव किए अपनी सल्तनत के कानूनों में। आसपास गुर्बत देखकर उस पर बहुत गहरा असर हुआ था। अपने पूरी हुकूमत के दौरान वो बहुत ही रहमदिल बादशाह बना रहा। सल्तनत टॉम कैंटी और उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुई। राजा एडवर्ड और टॉम कैंटी करीबी दोस्त बने रहे अपनी बाकी जिंदगी में। कहानी खत्म।